and on court craft. That was a wonderful speech. Hall was full. So thank you, Kaushal sir. You have given a time to Bar Association. Now I again request them to present an appreciation certificate and a memento to our District Judge South, Madam Shailendra Kaur. She has given lectures again on the court craft. People were happy, that when the district judge comes to our bar office for court craft, people. Now I again request to present a memento and a certificate to District Judge Southeast, Madam Madhu Jain. She had given a lecture on bar and bench relationship. It was very nice to hear. I again request them to present a certificate of appreciation and a memento to Shri Prem Kumar Bhartwal, District Judge, Commercial Court, Saket Court Complex. Sir, Shri Bhartwal has, this Commercial Court Act बाद में आया, बड़ी परेशानी हो रही थी. So people ask us कि कुछ एक ऐसा lecture कराएं. So Mr. Bhartwal gave us a lecture on Commercial Court Act. I again request them to present an appreciation certificate and a memento to Shri Sandeep Yadav, District Judge Commercial. Shri Sandeep Yadav sir has given lectures on cheating and forgery. There was a lot of confusion in cheating and forgery. So we requested him, and he came to our office, Now I'll request Honorable Mr. Justice Sanjay Kishan Kaul, Mr. Vinod Sharma, and Madam Anju Tawar, our Lady Member Executive, to present an appreciation certificate to Shri Naveen Kashyap, Judge MSCT Southeast. I think so. Shri Naveen Kashyap आज आ नहीं सके हैं because of some reasons. So we'll take his certificate and we'll send it to him. Now I again request them to give an appreciation certificate to Madam Monica Soroha. Madam Monica Soroha is also, she is out of session, she couldn't come, so we will take his certificate and we will send it to her. Now I request Honorable Mr. Justice Sanjay Kishan Kaul, Mr. Vinod Sharma, and Mr. Nachiketa, Member Executive, to present a certificate and a memento to Shri Prashant Sharma, Additional Session Judge Southeast Saket Court. A big hand for Mr. Prashant Sharma. Sir, he gave classes on CRPC. Excellent, beautiful classes. People enjoyed those classes. His way of teaching was excellent. Thank you, sir. Now, I again request them to present an appreciation certificate and a memento to Shri Loveleen. Additional Session Saket Court, Shri Loveleen has given lectures on bails. So there was confusion in bails and all, so all the confusions were sorted out. Thank you, sir. Honorable Mr. Justice Sanjay Kishan Kaul to take his seat. Justice Act, and I think he has done research work on Juvenile Justice Act. Next, Jai Theresa ji is not present here. We got the message since his father is critical. He had to go to AIMS and unable to be present here. Now I request them to present appreciation certificate and memento Sri Rakesh Kumar Singh, ADJ, Northwest Rohini Court Complex. He is also not present today. Next, Shreya Aroda Mehta, Madam, are you? No, chalo, anyway. Shri R.K. Tiwari ji next. और उनके नेक्स्ट अर्चना सिन्हा मैडम. नाउ आई रिक्वेस्ट
Honorable Mr. Justice Satish Chandra Sharma, Chief Justice High Court of Delhi, Shri Vipin Sharma ji, Vipin Chaudhary, Honorary Secretary, Mr. Ashok Kotnala, Senior Member Executive, to present appreciation certificate and memento, Shri R.K. Tiwari ji. Shri R.K. Tiwari ji, आए हुए तो थे? R.K. Tiwari जी, चलेंगे? अर्चना सिन्हा मैडम, Shri Narendra Kumar ji. Now I request Honorable Mr. Justice Shri Satish Chandra Sharma ji, Chief Justice High Court of Delhi, Shri Vipin Chaudhary, Kapil Tawar, Member Executive, to present appreciation certificate and mementos to Shri Narendra Kumar, Officer of Delhi High Court Judicial Services, had been former District Judge, now Member Judicial, DVAT Appellate Tribunal. We have come to know Shri Narendra ji has written more than 40 books on law, and he taught on cross-examination, delivered great lectures on cross-examination. Now I request them to present appreciation certificate and memento to Shri Deepak Vats ji, who conducted classes on Rent Control Act. Next, Vinik Jain ji. Now I request them to present appreciation certificate and memento to Miss Shilpi Singh, MM South Saket Courts Complex. मैम ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया, अब लिमिटेशन पढ़ा रही हैं और हमें ये ऑफर दे रखी है जिस सब्जेक्ट पे कोई ना मिले मुझे बता देना, आई विल कंडक्ट द क्लासेस. डिड ग्रेट वर्क. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. नाउ आई रिक्वेस्ट देम टू प्रेजेंट सर्टिफिकेट, appreciation certificate and memento to Miss Chavi Bansal. She had been topper of last Delhi Judicial Services classes. She conducted classes on Negotiable Instrument Act, and she also took class how to write answer in the exam. Very brilliant officer. Thank you. Now I request Animesh Kumar ji हैं आए हुए. Next Aviral Shukla ji. Animesh Kumar ji नहीं है. Now, sir, अब सफदर साहब, अच्छा चलो चीफ साहब की तरफ है. Now I request them to present appreciation certificate and memento to our very young officer Shri Aviral Shukla ji, who is conducting classes on Evidence Act with PowerPoint and everything. Now I request Mr. Justice Rajiv Sardar, Chairman BMCC, Judge High Court of Delhi, to present a appreciation certificate and memento to Miss Purva Mehra, Civil Judge South East, who conducted the classes on Hindu law. हमें हिंदू लॉ पे कोई नहीं मिल रहे थे, सब क्रिमिनल लॉ में इंटरेस्टेड थे. मैम ने कहा आई विल कंडक्ट ऑन हिंदू लॉ. नेक्स्ट विजय श्री राठौर, नेक्स्ट अर्चिता गर्ग मैम, नेक्स्ट ऋषभ तंवर जी. विजय श्री राठौर. May I request them to present a certificate of appreciation and a memento to Madam Vijay Shri Rathore. Please. Now, may I request them to present an appreciation certificate and a memento to Madam Archita Garg, Metropolitan Magistrate, Mahila Court, Saket. A very young officer, and she has given many lectures. We are thankful to her. Now, I again request them to present an appreciation certificate and memento to Shri Rishabh Tawar, Metropolitan Magistrate, Saket.
Thank you, sir. Chief Justice Sharma, Sardar Shankar and other honorable brother judges from the Delhi High Court, on and off the dais, district judges, President of the Bar, Mr. Sharma, Mr. Mannan, large number of lawyers and other dignitaries, ladies and gentlemen. It's a great matter of honor to be here, in memory to be here. After all, this is part of a district of Delhi High Court where I have spent 19 years at the bar and now 22 years on the bench. 40 years is a long period of time. It is a matter of great satisfaction to see the facilities which have been provided. See, work environment is also equally important. अगर माहौल ठीक रहेगा आपको काम करने की इच्छा ज़्यादा होती है और फैसिलिटीज़ होती हैं. आज के दिन टेक्नोलॉजी का यूज़ है, अदर चीज़ों का यूज़ है. तो व्हेन आई एंटर्ड द काउंटर एरिया, द अदर एरियाज, द पर्सपेक्टिव कैंटीन, द रूम ऑफ दिस थिंग, it was very gratifying to see it. It was also nice to see the clean environment. Structures can be created, but ultimately it is a legal fraternity who will either keep it as it is or things deteriorate. I have also always believed that the bar and the judges are part of the same system. One can't work without the other. Both owe a duty and both of them are here for the benefit of the common man. Our greatest criticism is that we are not able to finish cases in time. But sometimes we don't look at what is done. It's a negative form. कितना काम हुआ वो नहीं देखते, जो काम नहीं हुआ बच गया उसको देखा जाता है. तो the case doesn't become a arrear on the first day. A case becomes an arrear when it is not finished off in the reasonable time period which is expected of a case. Where lakhs and lakhs of cases are filed, I don't think it's a problem that lakhs of cases are pending. But the problem is that the case stuck in the system continue to prolong. My request to the bar is to assist the judges in finishing off these very old cases so that within a reasonable time a resolution is possible. Please keep in mind that for the litigant, it does not matter whether it is the first year of scrutiny, second year of scrutiny or the Supreme Court. It is everything. So from birth to the end of the case is time consumed in litigation, and that often becomes long because of some of the cases which are stuck in the system. I think a time has come where both the oral submissions have to be shorter and the judgments have to be shorter. संक्षिप्त में लिखना ज़्यादा मुश्किल होता है बजाय लंबा लिखने से, और संक्षिप्त में बोलना भी ज़्यादा मुश्किल होता है बजाय लंबी बहस करने से. तो दोनों तरफ से एक प्रयास होना चाहिए इस चीज़ के लिए. मैं अक्सर थोड़ी सख्ती कर जाता था वकीलों के संग इस मामले में, अभी भी करता हूँ कि बात छोटी कहिए, थोड़ी कहिए और आगे चलिए. शक्ता साहब मेरे संग बेंच में थे जब बड़े एमिनेंट लॉयर उस फील्ड के थे, मुझे पता था वो लंबी बहस करते थे. तो जब पहली बार मेरे आगे सब्जेक्ट में अपियर हुए तो मैंने कहा आई हैव एन अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम. आधे घंटे तक जो आप बात करेंगे मेरे समझ में आएगी, उसके बाद मेरी अटेंशन नहीं है. अगर आप उससे ज़्यादा जाएंगे तो उसके बाद जो भी जाएंगे वो ख़त्म हो. उसका असर हुआ. सिमिलरली छोटा सिनॉप्सिस देना. सिनॉप्सिस पर्पस इज टू सी दैट द जज इज एबल टू राइट द जजमेंट in a facilitative manner. The idea is not to create any other feeling. I always still write in my cause list, synopsis should be in 3 pages. If without leave it is 5 pages, I take out the last 2 pages, give it back to the lawyer, saying I had asked only for 3 pages to the synopsis. Kahin na kahin, some stage we have to discipline ourselves and discipline the lawyers also in this behalf, if we have to see the problem is solved. It is correct. So much infrastructure has been done, so many things have been done. Why? Because the bar and the bench cooperated. The Bar Association cooperates with the BMC. The bar members cooperate with it. That's how infrastructure is created. What I am very happy and pleased about is the process of holding classes.
It is helping, of course, in people taking the judicial service exam. But apart from that, it improves the skills of the lawyers who practice also. Today, if you see, the field and subjects of law have expanded vastly. Nobody can be an expert in every field, neither can be the judges. We have judicial academies, that is why, which help in upgrading skills of judges. Even we go there to upgrade our skills. Legal profession is a process of learning through your life, whether you are a judge or a member of the bar. So this kind of an approach in the bar steering it must be complemented and replicated in other bar associations. This is one of the major functions, I think, of the bar association. The only function which the bar sometimes performs, and I am in complete disagreement with, is the issue of abstaining from work. I never leave an opportunity to say this, because the legal fraternity is educated, you get justice for other people. How can you go beyond justice and try to get it? I have been a member of the bar. I have been a member of the bar association. I have been an office bearer of the bar association at a time period when the bar had the two longest strikes in Delhi High Court. I have learned what it costs. I call it the ride of a tiger. If you get down from the tiger eats you up. So this is the problem of resorting to an instrument which is not meant for educated people. It's the blue-collar labor category which has used it over a period of time, and even today they also negotiate. I don't believe there is anything which cannot be negotiated, which cannot be discussed, and the problem solved. What you have created is a self-reflection of what is possible. And I must say the Delhi bar is one of the big bars and has lawyers well educated, capable of doing their task. I also know that for youngsters it is a great challenge. Legal profession is very skewed in its nature. It gives disproportionately low later as it gives disproportionately more after a certain period of time. That's the structure of the profession. But my request to the senior members of the bar are to guide and help the younger members. अगर आप हर जना दो यंग लॉयर्स को अपने साथ रखेंगे, कुछ फाइनेंशियल हेल्प देंगे, कुछ उनको आप गाइडेंस देंगे, तो उनका एक लर्निंग प्रोसेस होता है कि आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उन लोगों को, यंगर मेंबर्स ऑफ द बार को ही सपोर्ट करें, और ये ड्यूटी बनती है जुडिशरी की भी कि यंगर मेंबर्स को इनकरेज करा जाए. आई फील कि हम लोगों ने इसी इनकरेजमेंट के तहत ही अपॉर्चुनिटी मिली थी. Basis was कि the credit should go to the junior and discredit should not go to the junior. I faced as a young lawyer a situation where the judge said, please argue, but senior is not here. I argued, he wasn't agreeing. He said, okay, call the senior. I will hear him for 5 minutes, then decide. These are small things which the judiciary can also do to help the younger bar be encouraged. We have all gone through the process, and I would like the younger members to go through this process of growth. Today, the legal field is very wide. There are different kinds of things. There are place in judiciary, there is place in academics, there are place in the corporate world. But of course, I still believe the charm is in the courts. It's like the surgeons of the medical field, which provide the opportunity, whether this side or the other side, to tackle and help the citizens. People come with a lot of faith. Despite so much delay, so much problem, why do people still come to the judiciary? They come because they still feel that it may take time, but they have faith that they will get something from the judiciary. And I think that's something we should be proud of. That's something we must keep in mind and help the common man for whom these institutions are built to get justice at a reasonable price, within a reasonable time, and fairly and honestly. Thank you very much for giving me this opportunity. Namaskar, Jai Hind. नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा. आप देख रहे हैं अमर न्यूज और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली साकेत कोर्ट के अंदर, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बार ऑफिस जो एसोसिएशन है उसका यहां पर इनॉग्रेशन होने जा रहा है. यहां पर तमाम आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस जो हैं यहां पर कुछ ही देर में मौजूद होने वाले हैं. तो चलिए दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ का प्रोग्राम जो है वो होने वाला है. And to recognize the contribution made by the various judicial officers and the participation of the lawyers,
in improving the skills, both for training them for judicial appointment as also in being more efficient lawyers. So that such a constructive approach is adopted by the Bar Association and the judges in collaboration, I think, is a matter of great pride, and that's the reason I've come. आपको क्या लगता है इससे क्या फर्क पड़ने वाला है आगे जो लॉयर्स हैं या फिर अभी आपने कहा कि जो अभी ट्रेनिंग पर है उनके लिए? देखिए, लॉ फील्ड ऐसा है, डेवलपिंग फील्ड है। कोई एक इट्स नॉट ए फील्ड जो एक जगह बैठा रहता है, तो इसलिए हम लोग सब सीख ही रहे हैं। लॉ में जो भी काम करता है, चाहे वो जज हो चाहे लॉयर, एक सीखता है। यंगस्टर्स स्पेशली जब आते हैं तो लॉ स्कूल से नए आते हैं और शुरू में कितनी उनको ट्रेनिंग मिली है न मिली, वो अगर अपने स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें अगर प्रयत्न करने से जुडिशरी उनकी मदद कर सके तो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है इसमें। सर मैं आपको बताना चाहूँगी कि अमर न्यूज़ ने डीएलएसए के साथ भी काम किया है पहले भी, तो अब भी फिर हमको मौका मिला है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अमर न्यूज़ की तरफ से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं या फिर अभी जुडिशरी पे? जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से कोर्ट में उसी चीज़ को पेश कर सके या जुडिशियल सर्विस एग्जाम में बेटर परफॉर्म करे। मैंने इस बात पे भी तवज्जो दी है कि समय कम होने की वजह से और केसेस डिसाइड करने के लिए आवश्यक है कि कम समय में बहस करी जाए और कम पेजेस में लिखा जाए ताकि ज़्यादा आउटपुट हो सके। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं विनोद शर्मा, प्रेसिडेंट साकेत बार एसोसिएशन। आज के प्रोग्राम के जो आप साक्षी बने उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का हमारा प्रोग्राम में 2 पार्ट में था। एक हम लोगों ने बार ऑफिस बनाया है जो कि हमारी बीएमसीसी होती है हाई कोर्ट में, ये उन्होंने बनवाया है। हमने उनसे मिल के रिक्वेस्ट की थी कि बार ऑफिस नया होना चाहिए और उन्होंने हमें फ्री हैंड दे दिया। पीडब्ल्यूडी से स्टेट ऑफ द आर्ट बार ऑफिस हमारा तैयार हुआ है। शायद पूरी दिल्ली के पूरे एनसीआर में ऐसा बार ऑफिस किसी भी बार एसोसिएशन के पास नहीं होगा, इन माय ओपिनियन। दूसरा पार्ट हमारा ये था, हम लोगों ने यहाँ पर जो यंग लॉयर्स होते हैं वो एग्जाम वगैरह देते हैं जुडिशरी के या और बैंक में भी देते हैं, लॉ ऑफिसर के देते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के देते हैं। तो उनके लिए आजकल कमर्शियल हब्स बने हुए, कोचिंग सेंटर है, कई मुखर्जी नगर है, कई बाहर है, बड़े परेशान होते हैं, बड़ी हाई कॉस्ट है, एवरीबॉडी कांट अफोर्ड इट। तो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने और मैंने ये डिसाइड करा कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो बच्चे बाहर परेशान होते हैं उनको यहीं पे हम कोर्ट प्रेमिसेस में ही उनको एजुकेशन मुहैया कराएं। और हमने यहाँ पर फिर लास्ट ईयर 27 सितंबर 2022 को हमने यहाँ पर फ्री जुडिशियल क्लासेस फॉर वेरियस जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए स्टार्ट की थी। फिर हम लोगों ने चीफ साहब से परमिशन ली, मैंने भी स्टार्ट की, 2 महीने मैंने खुद पढ़ाया, उसके बाद चीफ जस्टिस से परमिशन ली हमने। अब जुडिशियल ऑफिसर भी पढ़ाते हैं, मोर देन 25 जुडिशियल ऑफिसर उन्होंने पार्टिसिपेट किया और क्लासेस यहाँ कंडक्ट की। उसका 1 साल आज हमारा पूरा हो गया था, तो उसमें भी आज हमने एक मार्किंग ऑफ सक्सेसफुल 1 ईयर ऑफ जुडिशियल क्लासेस एट साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स हमने सेलिब्रेट किया। आपने एप्रिसिएशन अवार्ड से भी सम्मानित किया? हाँ, जितने ऑफिसर्स ने, देखिए हमारे यहाँ टाइम निकाला है, अपने बिजी शेड्यूल से मेहनत की है, क्लासेस ली है। एक लेक्चर लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को 5-6 घंटे पढ़ना पड़ता है, उन्होंने बड़ी पेन ली है। तो उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की चीफ साहब से और सफदर साहब से। मैं 7-8 महीने से परसुएट कर रहा था उन लोगों को कि एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए हमारे ऑफिसर्स को, ताकि एक इंसेंटिव मिले, दूसरे ऑफिसर्स भी फिर बड़ा फॉरवर्ड होके आगे आएंगे और पेन लेंगे और क्लासेस में को कंडक्ट करेंगे। एक इंसेंटिव होता है ये ऑफिसर्स के लिए, इसलिए हमने सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन सभी ऑफिसर्स को दिया, जो कि ड्यूली साइंड बाय जस्टिस संजय किशन कौल, जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट, श्री राजीव सरगर जी, चेयरमैन बीएमसीसी, जज दिल्ली हाई कोर्ट। उन्होंने ड्यूली उसको साइन किया, मैंने भी साइन किया एज ए प्रेसिडेंट, और हमारे सेक्रेटरी साहब ने भी सर्टिफिकेट को साइन किया और हमने वो सभी ऑफिसर्स को लेटर, वो सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दिया गया। आपने जिस तरह से बताया कि 1 साल कंप्लीट हुआ, तो आपको क्या डिफरेंस लगा कोचिंग लेने में, बच्चों में क्या डिफरेंस आया? देखिए,
सबसे पहली बात तो ये है कि बाहर जो क्लासेस होती है, मैं खुद सिविल सर्विसेज और जुडिशियल सर्विसेज का एस्पायरिंग कैंडिडेट रहा हूँ और मैंने इंटरव्यूज वगैरह भी दिए हुए हैं। आई नो द हार्डशिप व्हाट द पीपल फेस इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ व्हाइल दे आर एस्पायरिंग फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस। उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये स्टार्ट किया। और सबसे मजे की बात ये कि हमारे यहाँ जितने भी ऑफिसर्स आ रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, नेचुरली उन्होंने एग्जाम क्रैक कर रखा है। दे नो हाउ द निटी ग्रिटी ऑफ द एग्जाम। और उन्होंने उसी ओरिएंटेशन से सभी बच्चों को पढ़ाया कि किस तरीके से क्लासेस को टेकअप करना चाहिए, क्वेश्चन कैसे टेकअप करना चाहिए, कौन सा एरिया ऑफ क्वेश्चंस होता है, उसको कैसे तैयार करना चाहिए, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। रादर एक ऑफिसर जो हमारे जुडिशरी के टॉपर रही है, उन्होंने बच्चों को ये भी बताया हाउ टू राइट आंसर इन द एग्जाम। बच्चों में क्या चेंजेस है? बच्चों में बहुत चेंजेस आया। हमारे यहाँ जितने भी बच्चे थे वो सारे के सारे अब बेरक पढ़ते हैं। कुछ बच्चों ने एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिए, किसी ने बिहार का किया, किसी ने छत्तीसगढ़ का किया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्वालिफाई किया, किसी ने बैंकिंग का क्वालिफाई किया। दे आर डूइंग वेल। क्या सर और जितने बार हैं दिल्ली के अंदर सबको ऐसा कदम उठाना चाहिए? नेचुरली कदम उठाना चाहिए, बट इट इज वेरी स्ट्रेनुअस टास्क, नॉट सो इजी टास्क जो इतना देखने में या सुनने में आप लोगों को लग रहा होगा। जब इसकी तारीफ सुप्रीम कोर्ट जज से लेके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेके और बीएमसी के चेयरमैन और सारे जजेस जो तारीफ कर रहे हैं, इसका मतलब नेचुरली ये कोई साधारण काम नहीं है। ये बहुत टफ टास्क है, ये इतना आसान नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे बात? मैं संदेश ये दूंगा कि हर बार के अंदर एकेडमिक माहौल होना चाहिए और सभी बारों को चाहे कितना भी स्ट्रेनुअस टास्क को इनिशिएट करना चाहिए प्रोसेस को और आगे बढ़ाना चाहिए चीज़ों को, ताकि एक एकेडमिक एनवायरनमेंट रहे बारों में, लोगों का अपलिफ्टमेंट होगा, प्रोग्रेस करेंगे और दे विल डू वेल इन देयर लाइफ। आपके बुलाने पर सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अन्य बार प्रिंसिपल जज आए हुए हैं, आपको और आपके बार को कैसे महसूस हो रहा है? हमें बहुत खुशी हो रही है। हमने उनको रिक्वेस्ट किया, सब लोग आए। चूंकि हमारा एक पॉजिटिव प्रोजेक्ट था, पॉजिटिव सोच थी, इसलिए सब लोग खुश होकर आए और हमने बड़ा वेलकम किया उनको। वी आर वेरी हैप्पी। अपनी बार की तरफ से और जजों की तरफ से सबको क्या एक देश को और बारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश देना चाहता हूँ, देखिए हम एक ऐसे ईरा में एंटर कर चुके हैं जहाँ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, इन एवरी फील्ड। सो थ्रोट कट कॉम्पिटिशन है हर जगह। सबको बड़ी मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, लीगल फील्ड में भी करना चाहिए। यहाँ भी आसान काम नहीं रहा। और कोई एग्जाम करते हैं तो उसमें भी डू हार्ड वर्क डे एंड नाइट। दैट इज द ओनली रेमेडी टू प्रोग्रेस इन द लाइफ एंड अल्टीमेटली टू अपलिफ्ट द कंट्री। Our country will also progress in case each and every person they are hard working, doing well और एजुकेशन अगर ले रहे हैं तो नेचुरली कंट्री का डेवलपमेंट। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अंजू तनवर जी, जो लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में क्या ओपिनियन। आज का नमस्कार, मेरा नाम अंजू तंवर है, मैं लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव हूँ साकेत कोर्ट से। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। हम लोगों ने इनॉग्रेशन ऑफ साकेत बार एसोसिएशन रखा हुआ था आज के लिए और प्रॉपर पूरी तरीके से रेनोवेट करवाया है उसको। उसमें नई चीज़ें और स्टाफ के लिए अलग से सीटिंग वगैरह सब एडजस्ट करवाई है, उसमें मैनेज करवाया है। एंड चीफ जस्टिस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट वर अवेलेबल टुडे। वी हैव इनवाइटेड देम and we are so happy that they have come and made it a wonderful successful today. मैम क्या-क्या चीज इसमें आपने करी है, थोड़ा सा? एक तो इसमें स्पेस थोड़ी सी हमने बढ़ा दी है, उसको रेनोवेट किया है, तो स्टाफ की जो वो थी अवेलेबिलिटी वो 2 के लिए और बढ़ा दिया उसमें। पहले ये होता था कि फाइलिंग काउंटर नहीं था, ई फाइलिंग का अंदर खुलवा दिया है उसमें। और पहले लाइन्स होती थी, सो इट यूज्ड टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम की फाइलिंग करने में, तो अभी वहां से थोड़ा कन्वीनियंट हो गया है। इससे क्या आपको लगता है, क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे? इससे ये मुझे चेंजेस लगता है कि ई फाइलिंग में पहले काफी होल्ड ऑन रहते थे मैटर्स, तो थोड़े स्पीडी हो जाएंगे। और फाइलिंग के लिए पहले वहाँ ऑनलाइन करते तो कई बार ऐसा होता है नेट सिस्टम काम नहीं करता है, तो आप यहाँ पे आएंगे स्पीडी इसमें हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज जो थे मिस्टर कौल, उन्होंने भी कहा कि जिस तरह से कोर्ट के जो केसेस होते हैं वो पेंडिंग में रह जाते हैं, तो उसका रीजन हम जानना चाहेंगे। उसका रीजन ये है कि टाइम केस को इंस्टीट्यूट होने में ही टाइम लग जाता है। लाइक अगर इफ इट इज एन FIR केस तो वहां से कोर्ट में आने में ही टाइम लग जाता है। लाइक आपको उसको ढूंढना पड़ेगा एंड देन समन भेजना,
वारंट इशू करने पड़ेंगे, फिर वहां से आएगा उसमें कोर्ट में, फिर उसमें टाइम लग जाता है। कई बार होता क्या है कि लाइक देयर इज अ हॉलीडे, तो उसमें गैप आ गया, आप नेक्स्ट डे की डेट तो नहीं मिलेगी आपको। लाइक सम अदर रीजंस, इफ समवन इज ऑन लीव, मान लो एक्यूज ने एग्जेम्पशन लगाई है या किसी और तरफ से लगी है, एडवोकेट साहब नहीं आए हैं, तो इस रीजन से भी डिले हो जाता है। और जो जस्टिस साहब ने ट्रेनिंग जो ले रहे हैं उनके लिए जो बात कही है कि उनको आपको सहयोग करना चाहिए, तो क्या आप लोग सहयोग करने में ट्रेनिंग जजेस, ट्रेनिंग जो लॉयर्स हैं जो training- lawyer, अच्छा interns, okay. Yeah, of course we are supporting them. We are trying that we are giving them judiciary classes, free classes, जिससे they have a new ways, like अगर judiciary में उनको जाना है तो वहाँ से ट्रेनिंग करके, वो जो हमने judiciary classes दी है, that is helpful in both, like in daily practice also and in judiciary exam also. मैम डीएलए से ये क्या काम कर रही है? DLS is for legal aid for poor, और जैसे कि गरीब लोग होते हैं वो एडवोकेट अपना हायर नहीं कर पाते हैं, तो उनको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो। दैट इज द मेन रोल ऑफ DLS। साउथ और साउथ ईस्ट के 2 डीएलए हैं। हाँ, और क्या कितना काम कर पा रहे हैं आपको लगता है कुछ? नहीं, काम होता है, ऑफ कोर्स होता है। लाइक नीडी पीपल्स होते हैं, दे कैन नॉट हायर, दे कैन नॉट एंगेज एन एडवोकेट, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। एंड आई थिंक इट शुड बी एनलार्ज्ड आल्सो, थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, थोड़ा एरिया एनहेंस हो जाना चाहिए इसका। जो आप काम में सुधार लाइए कि इससे जनता को राहत मिलेगी? होपफुली मिलनी चाहिए, क्योंकि जजेस भी बढ़ गए हैं, सीट्स भी बढ़ गई है, काम करने का तरीका बढ़ गया है, यंगस्टर्स आए, एडवोकेट्स वो भी नहीं डेट्स लेना चाहते, हर कोई अपेयर होता है, तो डेफिनेटली होना चाहिए। को इंसाफ मिल पाएगा? विक्टिमों को इंसाफ तो डिपेंड करता है, सी वी आर फॉर विक्टिम्स, तो हम चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी ऑफ कोर्स इंसाफ मिले। मैम कभी कोर्ट ने ये थाने में जा करके देखा है कि वो विक्टिम के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं पुलिस वाले? विक्टिम के साथ पुलिस वाले नहीं, नेगेटिव बिहेवियर दर्ज करने में कितना हैरेसमेंट करते हैं? दे डू हैरेसमेंट, बिकॉज उनको इन्वेस्टिगेट करना होता है। लाइक अगर आप जाओगे, मान लो एक्यूज नहीं है, कोई निर्दोष है, उसके खिलाफ FIR हो रही है, तो आप उसको भी तो इन्वेस्टिगेट करोगे ना। कोर्ट में आके भी बताते हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं हो पाता है। नहीं, कोर्ट में एक्शन होता है, डेफिनेटली होता है। अगर कोई वारंट केस होता है तो उसमें वारंट इशू होते हैं, उसको पकड़ के लेकर आते हैं पुलिस वाले, ऐसा नहीं है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा संदेश सिर्फ इतना ही है कि ऑफ कोर्स बिलीव इन जुडिशरी, बिलीव इन लॉ, और सब कुछ सही होता है। हाँ, दो देयर इज अ टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर इंसाफ मिलता है। मैम एक कहावत है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कहा जाता है कि हम तुझे आ जाओ कोर्ट में देखेंगे। जब कोर्ट से भी निराश होता आदमी? नहीं, निराश नहीं होता। देखो, जुडिशरी पार्शियल नहीं होती है, जुडिशरी इज द ओनली थिंग जहाँ पे एंड में आप जाओगे तो इंसाफ मिलता ही मिलता है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, बट हर चीज को एविडेंस देखने में, इन्वेस्टिगेशन देखने में, हर चीज में टाइम लगता है, बट इंसाफ जरूर मिलता है। और अब तो थोड़े स्पीडी हो गए हैं मैटर्स, ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों तक पड़े रहते हैं या चलते रहते हैं। हर डेट पे कोई ना कोई काम होता है, ऑर्डर पास होते हैं प्रॉपरली, और कोई टाइम वेस्ट अब तो नहीं होता। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर दिल्ली साकेत कोर्ट में हम मौजूद हैं और यहाँ पर बार एसोसिएशन का इनॉग्रेशन हुआ, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज ऑनरेबल किशन कौल जी यहाँ पर मौजूद रहे। साथ ही उनके साथ हाई कोर्ट के भी काफ़ी जजेस थे और डिस्ट्रिक्ट जज भी मौजूद रहे इस प्रोग्राम में। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो यंगस्टर हैं जो अभी लॉयर की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए प्रोत्साहन उन्होंने बढ़ाते हुए बताया कि किस तरह से वो अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरह से जो जुडिशरी है उसके एग्जाम्स हैं उसके लिए भी उन्होंने कई बातें बताई। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए अमन न्यूज़।